Yeah, so we're all watching Diane. We're watching Diane, and we've all for 56 episodes believed that there is this girl who's come back and nobody recognizes her. The man who has had a child with her does not recognize her. The sisters who hate her do not recognize her. Her own bloody parents don't recognize her. क्यों? क्योंकि वो traditional से modern हो गई है. How So this is wonderful. what we're dealing with on television these days. I believe in this story, Of like I course we did do. with Khoon Bhari Khoon Maang. Bhari Maang, of course. When I Rekha's before and watched after. Khoon Bhari Maang, and I thought that movie changed my It existence. couldn't Amna. have. No, really. Yeah, yeah. It well, did. How? You know, I still remember it was the 80s Karachi, and we were all so young, and we'll walk every night from our house to our nani's house. And on the way, we'll have the video store. And at times when they were iconic movie releases, there was Yeah. a long queue outside, वो like VHS की Shahenshah, टेपें हम करते Mard, थे ना, हाँ, VHS ke tape, and Khoon Bhari Maang already had like a, you know, there was a lot of buzz around. और waiting period था उसमें. That yeah, and if you wanted first day, first VHS, and you had to pay 45 rupees, and we Fee. paid. My brother sort of crossed the line and got us that VHS, which was like the biggest gift Huh. from the heavens. And the moment I saw that movie and I saw what ad agencies were like, because Shatrughan Sinha, अब मुझे शत्रुघ्न सिन्हा याद भी नहीं he है was खून in the film as the creative director for an ad agency. Okay. And then, you know, his entry shot is he enters sort of very angrily in his office, हाँ. and he said, "Lagta hai upar wala खूबसूरत चेहरा बनाना ही भूल गया है." And cut to, we have Rekha who entered, and there's a receptionist sitting making some phone calls, and Rekha said, "मुझे model बनना है." And the receptionist said, "नहीं हमारे पास कोई जगह नहीं है." Hoity toity receptionist. Yeah, yeah, and she आप sort of, नहीं बन सकती. yeah, like very हाँ. modern. And then she tilts up and she looked at Rekha, and we don't see Rekha as an audience, but the receptionist saw, and she sort of, her arms stretched out, and she pointed towards the main door that said, you know, creative director's room. Oh. And the music is like la 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 la. And then Rekha entered, and we joined from the same line कि लगता है ऊपर वाला खूबसूरत चेहरा बनाना ही भूल गया. And then Rekha said, क्या मैं आपके सवाल का जवाब बन सकती हूँ? Oh. And then we have that iconic shoot that they did, Rekha on a motorbike. That किसी को later, पूरे dialogues भी याद हैं. no, I remember everything And that the movie. lip So gloss and the Diane heavy is, eye. I think, nothing. Diane is nothing. If we want to believe, and again, I think those stars were so convincing. Stop there now. Stop. Let's stop So there. we'll start again from Assalamu here. alaikum ji. Assalamu alaikum everybody. We just kind of jumped into that conversation. Welcome back to a new episode of Culture Vulture. मेरे साथ हमेशा की तरह है यावर पिछले महीने का एपिसोड मिस हो गया हमसे. I don't know why. There was a lot happening in the There was a country. lot I think the happening. rains, Yeah, the flood, yeah. the general sentiment wasn't supporting. In all honesty, I was one of the victims of the rain. Oh, I'm I so was stuck for sorry. 7 hours and all Oh, of that. So yes, the raining. बहुत गैर महफूज. जी. हमारा हर शहर, हर गांव ये मुल्क है, बारिशों बिल्कुल. में, सैलाबों में. बिल्कुल. उसमें शो करने की चाहत भी होती है कि जिन लोगों को एंटरटेनमेंट जाए या कुछ इन्फॉर्मेशन जाए, बट आई थिंक सर्कमस्टांसेस जस्ट डोंट लेट अस यही हुआ. do ऐसा ही things. हुआ. हम नहीं कर सके. The country was on hold, Yeah. you know, for a week or so. और अभी भी जब हम खबरें सुन रहे हैं, गांव के गांव बह गए. बिल्कुल. So August was quite, I think, traumatic for the Traumatic, country it was. at large. It was, certainly, But here we certainly. are now in a new Here September. we are now in September with a new month, a new season, the turn of a new season. Hopefully a happier season for Yes. everybody. और रबीउल अव्वल का महीना भी है, बिल्कुल. तो उम्मीद है कि बहुत सी बरकतें और ब्लेसिंग्स लेके आएगा और बाकी साल सबका अच्छा गुजरेगा. तो हमें ख्याल आया कि हमें एक कॉन्वर्सेशन बड़ी एक एवरेज कॉन्वर्सेशन है, लेकिन ऑब्वियसली हम इसको एवरेज रहने नहीं देंगे, कि बड़ी कॉन्वर्सेशन रही है पिछले 1-2 हफ्ते में कि जी बड़े स्क्रीन के सितारे हैं, फिर टेलीविज़न के सितारे हैं, तो उनमें फ़र्क क्या है. और ऑफ कोर्स वी टेकिंग अवे मे बी प्राइमरली, मे बी नॉट नेसेसरली, बिकॉज बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं जो बब रिक्शा ने कहा टीवी पे बैठ के कि फ़लाना जो है टेलीविज़न के स्टार्स हैं, ये बिग स्क्रीन पे बिलोंग नहीं करते, वहाँ पे इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई ऑरा नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है, ये टीवी पे ही रहें तो सही है. और अपने आप को उन्होंने 10/10 दिया एट्सेट्रा. बट देन यहीं से गुफ्तगू शुरू हुई कि हम भी बहुत देर तक यही सोचते रहे, और अब शायद अभी भी सोचते हैं, कि जो टीवी स्टार्स हैं और जो फिल्म स्टार्स हैं वो दोनों अलग अलग एक एंटिटी हैं. तो क्या ये दुरुस्त है? और अगर टीवी स्टार है एक अलग एंटिटी और फिल्म स्टार एक बड़ी चीज़ है, तो क्यों और कैसे? और फिर जो 3 प्रिडोमिनेंट मेरे ख्याल है फिल्म स्टार्स इस वक्त टेलीविज़न पे काम कर रहे हैं, और भी कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन मेजरली हम आजकल साइमा जी को देख रहे हैं, एंड मैं मंटो नहीं हूँ, एंड ऑफ कोर्स शी इज़ दी OG फिल्म स्टार और ऑफ लॉलीवुड.
We are also seeing Babar Ali also in Memento Neo and a number of other dramas as well. उनका क्या impact है और है वो hero है past के मतलब Lollywood के and then कभी कभी हम रेशम को भी देखते हैं television पे and then you have the whole TV stars. Although I would say now I also see Mehwish Hayat as a film star. True. Not so much as a TV star, although she started with television, but still. So क्या फ़र्क है दोनों में? क्या फ़र्क जो है ये मिटते जा रहे हैं? ये एक ही खोल से निकले हुए लोग हैं? कौन हैं ये लोग? इस पे हम बात करेंगे and of course फिल्म का जो एक राज़ल डाज़ल है जो आपने अपना किस्सा बताया. How it changed my life. How it changed your life and it changes so many lives. Cinema does that. ये ना ये इतना कोई 12 मसालों वाला टॉपिक हो सकता है और बहुत सनसनीखेज डालें आप भी मसाले डालें डालें globally when we look at the biggest industries the movie stars are considered real stars चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो अमेरिका हो the television actors have always been tier 2 no matter how successful they become when you look at the biggest award shows that actually reward film and television stars both. Even the seating charts are very different. You will have the big movie stars sitting on the front, and then you have the television stars like the Tonys, for example. There is a hierarchy to that. When you look at India, again, I'm not referring this out of love or hatred. It's just that these are facts. That the industry is so massive that they do have a robust film industry, and then you have a television industry. When you look at the pay structures, the pay scales, also the sitting hierarchy at an award show, star, I think the term should only, मुझे बहुत कोई डांट पड़ेगी इस पे, should only be retained licensed to movie stars. So what you're saying is Because they were the unattainable ones. They were never girl next door, boy next अच्छा door. बात कर लें फिर मैं I will dispute it. Just the I think the physiological definition of कि हम किसको stars कह रहे होते हैं वो हमेशा से because I think Hollywood coined that term the stars. वरना उससे पहले सिनेमा इटालियन सिनेमा भी था फेलिची का भी था ये सारे सिनेमास तो एग्जिस्ट कर रहे थे बट द ग्रेट स्टूडियोज इन हॉलीवुड coined the term stars and they coined the term like blockbuster. ये सारे terms हमारे तो नहीं है ये नहीं कि फिल्में सक्सेसफुल पहले नहीं हो रही थी लेकिन जो कल्चर का हिस्सा बनी जिसका जो शो का प्रेमिस भी है were these terms and when Hollywood coined the term stars for someone like Elizabeth Taylor or Sophia Loren, Audrey Hepburn, तो ये नहीं कि उस ज़माने में और अदाकाराएं नहीं थीं बहुत टैलेंटेड भी अदाकाराएं थीं सक्सेसफुल भी थीं और भी बहुत से लोग थे मूवी बनाने वाले म्यूजिशियंस ये सब कुछ थे बट somehow this term was almost demarcated for those chosen few who cross across borders almost like a star in a galaxy कि वो ये हर जगह तक इनकी चमक जाएगी and we saw the impact of those iconic stars on fashion, on culture, on cinema कि वो किसी भी एक फिल्म निकलती थी अमेरिका में और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे होते थे लेबनान में इन द 50s एंड द 60s बहुत दूर दोनों जगह हैं वो टर्म इसीलिए कॉइन की गई थी कि ये सितारे हैं जो हमें कभी ज़मीन पे तो नहीं दिखेंगे हम इन तक छू भी नहीं पाएंगे हम इनके बारे में जानते भी नहीं हैं कभी कोई ख़बर लग जाती है कि उसने तीसरी शादी कर ली एलिजाबेथ टेलर ने या हीरो का हार ख़रीद के दे दिया रिचर्ड बर्टन ने उनको इस तरह की खबरें पहले आती थीं वो भी बहुत कम रिसाले थे जो हम तक पहुंच पाते थे बट द रीज़न वाई दे वर रेफर्ड एज स्टार्स बिकॉज ऑफ द डिस्टेंट प्रॉक्सिमिटी कि हम इनको कभी ना जान पाएंगे कि ये कैसे रहते हैं और ये क्या करते हैं या ये क्या खाते हैं and same goes when you look at the legendary actresses of India or Southeast Asia मीना कुमारी मधुबाला ये सब जर्नलिस्ट के थ्रू हमें पता लगा कि वो कैसे रहती थी अगर मैं आपसे पूछूं भाई क्या करती थी आपने कहा जितनी भी रिसर्च कर ले आपको नहीं पता होता या उनसे पहले वाली अदाकाराएं all the way maybe down to actresses like a Kareena for example who was on a cusp of social media arrival and even in Pakistan the stars were always the term was retained for the biggest. Acha, now I completely agree with you and this applied I feel up to the turn of the millennium. Millennium turn हुआ है टेक्नोलॉजी का एक मेजर टेक ओवर हुआ है डिजिटल मीडियम्स का एक मेजर टेक ओवर हुआ है जो आप 70 फुट की स्क्रीन पे फिल्म देखते हैं वो आप एक 6.5 इंच की फ़ोन स्क्रीन पे भी लोग देख रहे हैं और स्टार जो है वो आपकी मुट्ठी में आ गया है
यही हुआ है ना, लिटरली स्टार आपकी मुट्ठी में आ गया, टीवी, फिल्म, सब कुछ, म्यूजिशियन, सब आपकी मुट्ठी में आ गए हैं, फ़ोन आपके हाथ में है, और वो जो आर्टिस्ट है, वो स्टार है, वो अपने दिन की पूरी कार्रवाई भी उसमें डाल रहा है, आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, जो वो बताना चाहता है आपको, उससे ज़्यादा भी आपको पता है, बिकॉज पेपराज़ी कल्चर है, व्हाटएवर एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरे ख्याल है टुडे that romanticism that we associate with the star of the last century of the 20th century doesn't apply anymore. And I was the biggest advocate, यावर, कि वो जो सितारे थे उस वक्त के एंड अनअटेनेबल और आसमान में चमक रहे हैं, मिस्टीक थी बिल्कुल थी, वो आज किसी की भी नहीं है। कोई एक ऐसा सितारा नहीं है जिसको आप कहें कि यार इस बंदे की मिस्टीक वैल्यू है, किसी की भी नहीं है। I will slightly disagree. श्योर श्योर, अब मुझे लगता है कि जो लोग रखना चाहते हैं ना वो मिस्टीक बताएं in कौन current times. कौन? For example, when you look at Taboo, हम्म we don't know much about her. The Indian media doesn't know much about her. When we look at Iman Ali also, we don't know much about her. Yes, when she talked about certain things out in the open, otherwise, to me, Iman, there's a cinema before Iman and after Iman. Iman again came on the cusp of change. श्योर, Because she did Khuda Ke Liye, such a definite or defining moment Yeah. for cinema. Iman was the last of the greats. Iman was the last of the heroines. what you're saying is आजकल का कोई Now, greatness, nobody comes closer. there's no I greatness think even today. the girls who are there right now will agree that the last of the greats of cinema or stardom or star was Iman. That DNA, I think, has तो evaporated. मैं यही तो कह रही हूँ कि it was then and there is now. Because even the ones who choose to be slightly distant now, I'm sure they can, but there's so much pressure of money making from social media, money making from appearances, money making Relatability from नहीं vlog. है, relatability नहीं है यावर. That's why the films अब are का जो getting star flopped. है, That's why the films are not making money. that's Abhi, not why they're flopping. Abhi, They're no. bad films, that's why they're No, but for flopping. example, when we look, and again, to people who will put the comment कि आप क्यों हिंदुस्तान की बात कर रहे होते, when we looked at the launch of Sayyara, Yeah. which has made so much money for YRF in this quarter. I think more money than they made in the last 10 years. Maybe war से ज़्यादा उन्होंने पैसे कमाए हो. They completely kept the stars hidden away. Yeah. Actors बेचारे stars तो वो शायद अभी नहीं है, लेकिन वो दोनों बच्चों को उन्होंने बिल्कुल छुपा के रखा. Rising stars. उनकी कोई एक pap picture नहीं आई. They never got papped anywhere. There was not even a single shoot, a single interview. जबकि एक उसमें वो आहान पांडे, and again coming from a filmy family, and the Yeah. girl is wonderful, but we didn't know anything about them. Even after the success of the film, they are not going out and doing things. And they realized, I saw this incredible conversation कि क्यों उन्होंने छुपा के रखा, क्योंकि उन्होंने कहा इतने डिस्पोजेबल हो गए हैं. और पहले ये था कि लोग वेट करते थे कि हम ये सिर्फ फिल्म में दिखेंगे, तो वो टिकट देख के आते थे. अब आपको रोडों पे दिख रहे हैं, कैफे में दिख रहे हैं, I completely ब्लॉग agree में दिख with रहे you. हैं, तो फिर मैं वो क्यों, बट मैं इफ दे चूज टू दे कैन डू इट नाउ I आल्सो. completely agree with you and I believe कि एक मिस्टेक होनी चाहिए एक स्टार की. मैं तो बहुत एडवोकेट हूँ इस चीज़ की. मैं ऐसे कह रही हूँ वक्त बदल गया, अब है नहीं यावर, बहुत कम है. एक आहन पांडे, उसके Because they अलावा all बहुत want कम है. money now, Amna. Exactly. Because जो भी पहले वजूहात एक हैं. सोर्स थी Yeah. उनकी फिल्म की इनकम, और अगर पाकिस्तान में देखें तो फिल्म की इनकम हो गई, या हिंदुस्तान में देखें तो किसी शादी पे डांस कर लिया, इवेंट पे, उस तरह के इवेंट्स होते Yeah. भी नहीं थे कि जो पेड हों, बट दे वर वेरी हैप्पी कि वी विल होल्ड ऑन टू अ स्टार ऑरा, कि वो Absolutely. कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे. अब उनको एकदम से लगा कि वैल्यू और मनी स्ट्रीम तो बहुत सारी और भी हो सकती हैं, Yeah. कि चलो हर जगह पहुंच जाओ, कि अगर फेज़ 8 में रेस्टोरेंट की ओपनिंग भी हो रही तो वहाँ पहुंच जाओ रिलेटेबल बनने के लिए. टीवी वाले लोग हमेशा रिलेटेबल रहे, Yeah. क्योंकि वो Absolutely. लोगों के लाउंज में आ रहे होते थे बिल्कुल, ना, मुफ्त घरों आ में रहे आ रहे थे. होते थे. Yeah. और वो उनके लिए बिल्कुल सही था. जितना मैं शायद इख्तिलाफ बबरे की, मुझे लगता है उनके कहने का तरीका शायद सही नहीं था. सही नहीं था. Maybe it's coming from a place of detachment or whatever it is from the current truth. I think ये वो He never generation got भी his है due. जिनके due worth. But I also feel ये वो generation भी is not really gotten used to social media, the world of social media. But his sentiment was extremely accurate. And again, this is how the global industry works. There are certain people who are made for cinema. Yeah. What makes them worthy of cinema? Tell me. Aura. There's this What is something aura? so beautifully unassuming, imposing, intimidating,
लाइक मैं आपको अपने जब मैंने साइमा जी से पहली दफ़ा देखा, तो ये नहीं कि हम वाकिफ़ नहीं थे या नहीं जानते थे लोगों को, सिनेमा के या अदाकारों को। एक पुल है बहुत शदीद वाला कि आपकी आँख नहीं हटती, और ये भी नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा मखरूती हुस्न की औरत Yeah, हो, yeah. कि जैसे ऐश्वर्या हैं कि आप या रानी बेगम थी कि आपकी सांसें रुक जाएं। मधुबाला. लेकिन एक पुल, ये हमारी, और नाउ आई विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट पाकिस्तानी अदाकाराओं की और अदाकारों की, कि एक पुल है जो इतना शदीद है जो आपको लगता है कि ये हम में से नहीं है, ये कुछ और ही हैं। शान का एक्सट्रीमली Absolutely. स्ट्रॉन्ग ऑरा है कि जब वो बहुत आपके साथ दोस्तों की तरह भी, वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, Yeah. जिन ने शान के साथ काम किया है वो बहुत वाकिफ़ हैं कि वो एक बहुत बहुत अच्छे सुलझे हुए ज़हीन फ़िल्म मेकर भी हैं, और उनकी सिनेमा नॉलेज बहुत अच्छी है। उनके वालिद भी फ़िल्म साज़ थे, वालदा फ़िल्मों से ताल्लुक़ रखती थी। एक पुल है, जो आपको याद है वो साल जब शान ने और साइमा जी ने बिल्कुल स्टेज पे स्टेज पे परफॉर्म परफॉर्म किया किया था था। एलएसए के. उफ. उफ, उन्होंने घुंघरू बांध के। उफ. बट साइमा, ये बहुत सारी, अगर अगर हम डीप डाउन कर रहे हैं ना अदाकाराओं में, सिर्फ पाकिस्तान जो लॉलीवुड की एक्ट्रेसेस रही हैं, तो चाहे वो मुट्ठी भर चावल की संगीता हों, जो अभी भी कमरे में आती हैं, यहाँ पे भी अगर आएंगी तो आप 2 मिनट के लिए चुप हो जाएंगे, बिकॉज एक औरा और एक पुल है। वो आपके पास रानी बेगम, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद, और ये नहीं है कि हम अभी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भाई वो तो गोल्डन एज थी या उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था। अगर उस वक्त भी सोशल मीडिया होता भी ना, तो इन लोगों ने राइज अबव करना ही था, बिकॉज कोई इनमें अल्लाह मियाँ ने ऐसा कोई पुल डाला हुआ था। रीमा, व्हेन शी एंटर्स अ रूम, ईमान अली, और आप किसी से भी पूछेंगे ना, जब ईमान फिल्मों में आई भी नहीं थी, जब वो मॉडल भी थी, तो जब वो आती थी कहीं, तो सबको ये था कि ये लड़की कुछ करेगी, इसमें कुछ है, कोई ऐसी मकनातीसी ताकत है कि द कैमरा कैन नॉट। Do you think it's God gifted? एब्सोल्युटली, कुछ ना कुछ तो आपने फिर celestial उनको दे दी ना वो ऑरा कि वो वो उनमें वो you कुछ just था। yeah. And the smarter ones retain that like a star, and when the time comes they fade away। सितारे गुम हो जाते हैं ना बादलों Sure, के पीछे, तो sure, बाबरा शरीफ sure. कहीं गुम हो गई। बाबरा शरीफ, my God. और जब बाबरा टीवी पर भी आई नादान नादिया करने, Yeah. तो वो अपना, हमें तो अब लग रहा है कि टीवी के लोग आए, लेकिन बाबरा ने नादान नादिया अनवर बहुत देर मकसूद पहले साहब किया के था. साथ कब Yeah. वो किया था। और बहुत सारी, रानी बेगम ने ड्रामा किया, आई थिंक ख्वाहिश या कोशिश, whoever saw that प्लीज़, उसमें बहुत गुड लुकिंग हीरो भी थे, अजमुल हक, नीचे कमेंट में बताइएगा। और वो कोई गोस्टली हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल वो बनी हुई थी, ऑलमोस्ट लाइक अ पर्सन लॉस्ट इन टाइम। और वो उस पूरे ड्रामे में बस वो एक कमरे में कैद रहती हैं, बट रानी से बड़ा के फिल्मी नाम हमारे यहाँ नहीं रहा, और वो भी ड्रामों में आई। और बहुत सारी निहायत ही पेनफुली खूबसूरत औरतें जिनका कोई मुवाजना नहीं था हिंदुस्तानी अदाकाराओं से, यू नो, दे वर माइल्स अहेड इन टर्म्स ऑफ वैनिटी, पर एक उनका औरा था। और जब ये ड्रामे भी इनसे कराए गए, बहुत ज़हीन लोगों ने ड्रामे कराए, तो वो अपना औरा लेकर आई। जब अभी हम साइमा के लिए हम सब फिदा हैं उनके काम पे. वो पूरा ड्रामा एक तरफ है, and I'm not taking anything away from Sajjal, she's very dear to me, वो साइमा एक तरफ है, वो उनका अपना ही कोई सुर है, अपना ही कोई ट्रैक चल रहा है उसके अंदर। I like that. उनका अपना सुर है. उन सही वो बात अलग है. है, क्योंकि चाहे वो सबा फैसल हों या कोई और, ये कोई हल्के अदाकार हैं तो हैं नहीं ना। नहीं. आसिफ रज़ा मीर हो लेकिन गए, उनकी टक्कर के अगर कोई हैं सलमान तो शाहिद, बाबर अली हैं. बाबर अली, क्योंकि मुझे लाइक remember it so vividly जब जीवा रिलीज़ हुई, एंड अम्मी अब्बा विल ड्रैग अस टू ड्राइव इन सिनेमा, कि जाके देख के ये सब फिल्में, बहुत फिल्मों की तरफ रुझान था हमारा। there was a अच्छा, dichotomy, हमारे घर में गानों की तरफ था. It's there like was I don't immense dichotomy, there was a lot of, वैसे very religious household, हाँ. but then cinema and appreciation of art always It remained. was appreciation of art So actually. appreciation of art बहुत वहाँ थी। और जब ये जीवा आई, सो एक लंबे बालों वाला हीरो जिसने स्लाउची ट्राउजर्स पहनी हुई थी, फ्लोरल शर्ट्स पहनी हुई थी, बहुत मेहनत उस ज़माने में सैयदून ने करी थी। एंड देन एन एक्ट्रेस दैट डिडंट लुक लाइक अ पाकिस्तानी एक्ट्रेस वाज क्वाइट मॉडर्न, रेशम, कि वो
इस तरह की बहुत सारी अदाकाराएं हमारी आई, जिया अली बाबर अली के साथ लॉन्च हुई थी, आई थिंक रेशम लॉन्च थ्रू सम अदर फिल्म, उस कुड़ियों को डाले दाना और समवन, बट ऑल दीज एक्ट्रेसेस एट द सेम टाइम, ज़ारा शेख आई थी, ये सारी बड़ी मॉडर्न एक्ट्रेसेस थी, बट आई रिमेंबर बाबर अली वाला पहला गाना वॉज आइकॉनिक, और वो स्टार क्वालिटी उन्होंने अभी तक रिटेन करी. रेशम आई रिमेंबर केम फ्रॉम ड्रामाज, आई थिंक उन्होंने किसी ड्रामे में छोटी बच्ची काम का भी किया था। रोल किया था, लेकिन उसके बाद फिल्में करी, और पर जब वापस वो ड्रामों में आई, जो उन्होंने तारे अंकबूत किया या फसी के साथ जितना भी काम किया, अनमैच्ड, अनपैरेलल, यू कांट टेक अवे द स्टारडम फ्रॉम रेशम. Yeah, you cannot. वो अभी उमर सईद की किसी ने तस्वीर डाली जिसमें शी वोर उमर सईद, she looked like $1 million. I think Yeah, she no wears girl so can much match. Iqbal Hussain. She इकबाल, looks fantastic. उससे पहले वसीम बिल्कुल पहनती थी, चंदा और वसीम उन्होंने बिल्कुल पहना, बिल्कुल उमर सईद पहना, भाई और चंदा वो और वसीम खुद से स्टार्स हैं all एक्सपोजे, of these, yeah. रिमेंबर एक्स्ट्रा मैगजीन Of का course. फीफी वाला उन्होंने कवर किया था, गोल्ड टब के अंदर लेटा हुआ, टप्पू शॉट दैट, एंड रेशम वाज आइकॉनिक, विल ऑलवेज बी, एंड सो इज मोस्ट ऑफ दीज गर्ल्स. ड्रामों की हमारी बहुत टैलेंटेड लोग हैं, वो पुल नहीं है. एंड इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि लोग टिकट नहीं देते, टिकट देते हैं, आई एम श्योर देते होंगे, ऑप्शंस ही नहीं है. अब उस तरह का कल्चर ही कल्टिवेट नहीं होता कि ये फिल्मी शक्ल है. Can I say something very please. like controversial and maybe not a very popular opinion? मेरे ख्याल है टैलेंट भी इतना नहीं है. हमें लगता है बहुत टैलेंट है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो वही अदाकार बार बार वही किरदार कर रहे हैं जिसको उनको महारत हो गई है. लड़कियां जो हैं उन्होंने दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ वीपिंग ऑन स्क्रीन, बट अगर ज़रा सी डाइवर्सिटी हो कैरेक्टर में या स्टोरी में, इट फॉल्स फ्लैट मोस्ट ऑफ द टाइम. हैं ऑफ कोर्स क्या टैलेंटेड एक्टर्स भी हैं, ये मैं नहीं कह रही कि बहुत कम, नहीं है, बहुत छोटा पूल है. ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है. अगर आप हमारी मीम्स की दुनिया देखें ना, वहाँ आपको टैलेंट नज़र आता है. ये कौम बहुत टैलेंटेड है, ये कौम बहुत टैलेंटेड है, ये बहुत विटी एक कौम है, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर ज़बरदस्त है. दे आर वेरी टैलेंटेड एंड आई एम सो हैप्पी पाकिस्तान गॉट टैलेंट Yeah. is coming in officially, and I think it's great because we are a very Humor, talented. एक Yeah, जो हमारा तंजो मजा है, तंज़ो वो तो मज़ा. वहाँ पे जो भी ओह, जुक्तीबाजी में तो absolutely. हर रोड पे कोई भी इंसान खड़ा होगा, वो एक जुगत आपको मगर लगा टीवी देगा. पे आई एम सॉरी हम बहुत लिबरल आमना हैं. मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं हो नहीं रही. हो रही यावर, आप हम देखें कि बहुत जेनरसली कहते हैं कि ओहो ये ज़बरदस्त टैलेंट है, सो एंड सो हैज परफॉर्म ब्रिलियंटली. नो दे हैवंट. जब हमारे ग्रेट सिनेमा मेकर्स या ग्रेट डायरेक्टर्स अदाकाराओं को लाते थे, और मैं स्पेसिफिकली एक ही जेंडर की बात कर रहा हूँ, जब इन लड़कियों को लाते थे, दे ऑल वेरी यंग. रीमा केम एट 15, Yeah. मदिया केम एट 14, मीरा केम एट 14, और उससे पहले भी जितनी अदाकाराएँ आई, तो 13 साल, 14 साल, 15 साल, एंड जेन्युइनली दे केम वेरी यंग. तो पूरे लोग इनको सिखाने वाले होते थे कि जो उनको सिनेमा के लिए Groom शेप करते करते थे, थे yeah. उनकी पर्सनालिटी को, Yeah. कि बोलना कैसे और चलना कैसे है, नाम इनके बदले जाते थे, आइडेंटिटी बदली जाती थी, ये सारे काम होते थे. मुझे लगता है ऑल द वे डाउन टू जब जिया अली आई एंड नबीला गेव हर अ मैसिव मेकओवर, के उनकी खाल तक बदली गई और बाल बदले गए, पूरा एक पर्सोना बदला गया, और बहुत मेहनत सज्जाद गुल करते थे उस ज़माने के एक्ट्रेसेस पे. नीली बेगम जब आई, पूरा जितनी इन पे मेहनत करी गई, यू नो, नीली वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल. beautiful आप woman. लोग प्लीज़ जाके कोई भी नीली के फिल्म का गाना गाना उठा उन पे लें. बनाया और गया है. बाल, हाँ. हम अभी बालों की आमना के नए बालों की हम आमना बात के कर नहीं. रहे हैं. एकदम ब्यूटीफुल हेयर कट for 2.0 Amna. 2.0 Amna September is the 2.0. January of fashion, so you Amna clearly have a new 2.0, look. new look by the one and only Nabila. Iconic. So Yeah. उस ज़माने में if you ask Nabila, she will tell you that all the legendary filmmakers will say कि नबीला ये एक लड़की है और इसको फिल्म में लेकर आना है. Yeah. और ना उसको बोली आती है, ना इसको चलना आता है, ना इसको लिपसिंग आता है, ना इसको डांस आता है, ना इसकी शक्ल सही है सिनेमा के लिहाज से. Yeah. खूबसूरत बहुत होंगी, बट सिनेमा हाँ. की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, मगर कुछ है. और वो तो दिख जाता है ना हाँ, कि exactly, कुछ है. ये तो मसाला उसमें है. आई थिंक इफ यू टॉक टू पीपल फ्रॉम ओल्डर लॉलीवुड, दे विल टेल यू व्हेन अ रीमा केम और अ मदिया शाह केम, एंड ये वो लड़के हैं जो अभी ख़वातीन हमारे आसपास मौजूद हैं, तो गूगल करना आसान रहता है. सो दे न्यू कि जी रीमा आई तो ये छा जाएगी. जब बुलंदी बनी विद शान एंड रीमा, anybody who saw this teenage lovers, they were teenage lovers. I think Shan came right after his O levels, Yeah. अमेरिका से.
and Rima was barely 16. I think when she signed the film, she was even younger. Uh, everybody fell in love Yeah. with this couple. It was a very modern film of young college kids falling in love. सैयारा ये हमें क्या बता रहे हैं ना, हमारे पास बुलंदी थी. Uh, What a film. somebody Yeah. invested money. Yeah. There was a lot of money, and I think same when Syed Noor Sahab reintroduced or introduced Saima in the movies, because he must have seen something. I remember Dubatta Jal Raha Hai. It was an iconic film. Domestic violence को लेके हम अभी इतनी चर्चा कर रहे होते हैं, और Syed Noor made a brilliant film. Yeah. I was in college in Lahore and I went to see the film because you have to. Yeah. उसमें भी रेशम थी, and it was about dowry and domestic violence. एक बड़ी सीरियस सी वो फिल्म बनी, पर उसमें कॉमिक रिलीफ के लिए उन्होंने साइमा को रखा हुआ था. एंड साइमा वाज दिस वेरी रॉन्ची स्ट्रीट डांसर. और जो, I mean, it might sound wrong now, but anyways, this is cinema and you take creative liberty in Lollywood. So जो साइमा की एंट्री सीन था, तो the camera is behind her and she is moving forward, और camera of course is celebrating her vanity. और वो जैसे ही साइमा टर्न करती हैं और एक पुलिस वाले से नोक झोंक करती हैं, तो पूरे सिनेमा में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे. और उस जमाने में ये होता था कि अगर कोई सीन इतना अच्छा है तो वो रिवाइंड करके फिर से वो टेप चलाते थे. So Saima went back and then Saima went ahead, and that was the entry of a star. Yeah. Everybody could tell that a star is born. A Star is Born. And the film was anchored around Resham, who performed so beautifully, and was a wonderful film. I don't know if Sayyid ने लिखी थी या ऐसा कुछ था उसमें, but Saima was doing a cameo. Yeah. But you can't ignore a star. No, she left an impact. When we looked at Khuda Ke Liye, my favorite film from this century. So मेरे ख्याल में जो शान के अमेरिका वाले सीन थे, जिस तरह वो पिक्चराइज भी हुए थे बहुत से और भी खूबसूरत लोगों के साथ, यू कांट लुक अवे फ्रॉम शान. जब वो जेल में भी उनका जो पूरा एक कॉन्वर्जेशन होती है पुलिस वालों से, इट्स अ स्टार. दैट वाज अ स्टार स्टेलर परफॉर्मेंस. ईमान अली, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था उनके एक्सेंट का कि वो जी किस तरह से अंग्रेजी बोल रही हैं. But you can't take away the fact that she's a star. In fact, जब ईमान ने सुप्रीम इश्क के गाने भी किए थे, I think those were very impactful. With Shoaib साहब. Yeah. So you could tell there's a star. मैं और आप अगर उनको बसंत पे भी कहीं देखते थे तो हमें पता था कि वो एक little role that she had in Bol. Iman was gorgeous. And the switch that she had from Punjabi to Lucknowi Urdu and back to Punjabi. मजा आ जाता था. So वो ये तो उनमें था. Unfortunately उसके बाद times changed. So I think अब का पता क्या हो रहा है? I feel this way that right now our stars, our TV stars, have become people pleasers. ये जो सब लोग थे ना, they didn't know what the public felt. All they could hear was applause in the cinema, and they didn't want to hear. They were not unaffected by public opinion. उनका ये था फिल्म चल गई है, हम स्टार हैं. It was very like 1 + 1 = 2. अब जो है ना, there's so much interaction between the artist and the public. Everybody has become a public pleaser. उस वक्त एक uninhibited performance होती थी. एक वो there was nothing between the actor, the performance and the audience. अब तो उनको फर्क नहीं पड़ता था कि क्या लिखा जा रहा है उनके बारे में, या वो ये कि खबरों में है भी कि नहीं, लेकिन वो रहते थे. But I think right now major industries are facing that issue now of making a star. Major industries are having this. But मुझे नहीं लगता कि, लेकिन अगर हम अभी बोलें कि who is the cultural defining heroine और hero, वो नाम ढूंढना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो जब तक वो बनते हैं वो गायब हो जाते हैं. कौन है बताएं आजकल? आई थिंक अब मुझे लगता है 100 साल बाद अगर लोग जाग के ये वाला शो देखेंगे, या 200 साल बाद, जैसे हम आर्काइव विजिट कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि अच्छा जी 30s में 20 साल भी कर लें. नहीं, होना तो चाहिए कि एक सेंचुरी डिफाइनिंग या डेकेड डिफाइनिंग तो स्टार हो. अभी तो सेंचुरी शुरू हो रही है ना, तो डेकेड डिफाइनिंग आप कर लें. वो तो 2020s का स्टार, आप डिफाइनिंग स्टार्स कौन है आपके? You would say माहिरा खान, माहिरा, फवाद, फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा. Tricky, right? Very tricky. Even when you look at the last century, there were many greats. And Southeast Asian artists की मैं बात करूँ, हिंदुस्तानी इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी. उसकी भी अगर हम बात करें, I don't think so anybody can surpass दिलीप कुमार. No.
लाइक जस्ट द बॉक्स ऑफिस ट्रैक रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इंटायरली स्ट्रिक्टली बिजनेस के Yeah. कितने स्टूडियोज ने उनको बुक किया हुआ था। Yeah. और इसका बिल्कुल वो नहीं है कि जी वो यूसुफ खान थे या वो पेशावर के थे, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि उनसे बड़ा स्टार जो उनका सिनेमा पे इम्पैक्ट रहा और कल्चर पे इम्पैक्ट रहा, कि जब आप जाते हैं और आपने देखा कि दिलीप कुमार वाला हेयर स्टाइल बरेली के छोटे से एक बार्बर शॉप पे भी बनाया जा रहा है, तो ये इम्पैक्ट ऑफ अ स्टार क्या था उस बंदे के बारे होता है। में? और क्या था? क्या था? मैजिक मैजिक था। मैजिक I mean, you look अब at An and Mela, oh, you look at for uh, my favorite Tarana. oof, and you Both of look at them. him Oh, and my mother was in love, smitten by oh, these Devanand and all Dilip. of them. It was just sort of iconic and legendary. लेकिन वो जो एक अगेन, क्योंकि ये एक प्रोग्राम का प्रेमिस कल्चर से लेके है, तो वो स्टार का कल्चरल इम्पैक्ट फिर ये होता है कि लोग उन जैसी बोली बोलना चाहते हैं, कपड़े पहनना चाहते हैं, जो वो कर रहे होते हैं उसको इमिटेट करना चाहते हैं। और वो अभी तक अगर करते हैं। मुमताज़ ने ऑरेंज साड़ी पहनी तो फिर सबको वो ऑरेंज साड़ी चाहिए थी, ये उसका एक इम्पैक्ट होता है ना। जय जय शिव शंकर। मोहम्मद राना ने रिप जीन्स Yeah, पहनी, yeah. everybody wanted the Mohammad Rana look of a banyan and a ripped jeans. So ये नहीं कि हमारे पास वो नहीं था, बट एक ये सेंचुरी डिफाइनिंग जो है वो वहाँ पे अगर दिलीप कुमार, एंड देन जस्ट बाय द शेयर पॉपुलैरिटी पैन, ना सिर्फ पैन एशिया बल्कि वर्ल्ड वाइड, विल बी शाहरुख खान। अब वो अच्छे अदाकार नहीं हैं, खूबसूरत नहीं है, वो तो इरेलीवेंट है। मैं सिर्फ अगर आपके पास 37 ब्रांड्स अभी भी आपके साथ पार्टनरशिप में हैं, बिल्कुल। कुछ तो आपका इम्पैक्ट होगा ना। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि नसीरुद्दीन शाह नहीं है या ओमपुरी साहब नहीं थे या नवाजुद्दीन या इरफान खान मरहूम नहीं थे, बट आई थिंक शाहरुख विल बी फॉर दिस सेंचुरी एज अ डिफाइनिंग सेंचुरी, डिफाइन एटलीस्ट लाइक हाफ अ सेंचुरी डिफाइनिंग स्टार तो वो रहेंगे। आई थिंक इन पाकिस्तान हमारे यहाँ क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट तो हुई नहीं गई, ना स्टार्स पे, ना स्टारडम पे, ना मीडिया पे, तो सिनेमा के बाद अगर वहीद मुराद या मोहम्मद अली साहब के बाद, थिंक इमरान खान बिकेम दैट सेंचुरी डिफाइनिंग हीरो। Absolutely. वेदर सॉरी अगर आप लोगों को Whether पसंद you नहीं आ like रहा, him or बट hate him, but yeah, I mean there's no you can't bigger take there was no star. bigger star There's no bigger star with a in global Pakistan. impact. Absolutely. कि जो उनका इमरान खान साहब का एक ग्लोबल इम्पैक्ट रहा है इन हिज Yeah. क्रिकेट डेज एज एन एथलीट, मुझे लगता है बेकम तो क्या ही होंगे, जो इमरान खान का Global तोती impact बोलती था। थी उनकी Yeah. थ्रू आउट द काउंटी, बिल्कुल। वो एक उनका इम्पैक्ट था। उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई और फिर हमने टीवी के लोगों को बाय फोर्स। मगर टीवी की तरफ आते हैं थोड़ा सा, बिकॉज हम लोग ये कहते हैं कि जी टेलीविज़न हमारा सबसे बड़ा मीडियम है। हम कहते हैं कि जी हमारी फिल्में नहीं चल रही, हमारा टेलीविज़न जो है वही हमारा सबसे बड़ा मीडियम है और है भी। तो स्टारडम जो है, टेलीविज़न स्टार की स्टारडम को कैसे एलिवेट किया जाए। दूसरी चीज़ है रिलेटेबिलिटी। मैंने 2-3 जेन ज़ीज़ से पूछा कि तुम लोगों के लिए सबसे बड़े स्टार्स कौन हैं? आर दे फिल्म स्टार्स, टेलीविज़न स्टार्स और डिजिटल स्टार्स? एंड दे वर लाइक film stars तो we don't even relate. No, television तो we don't even relate to. Television was lowest on the, on the grid. Film star, if you make it that big. मगर वो भी film star कौन है बड़े? You've got the Iron Mans and you've got the superheroes, you've got the Tom Cruises, वो Brad Pitts, वो level है. उसके बाद digital stars हैं. That's who they relate to. For them, you ask them, a Mr. Beast, मगर वो भी level कम ही है ना. There aren't many Mr. Beast. But still, रिलेटेबिलिटी है। टेलीविज़न उनके लिए फैक्टर ही नहीं करता। ये जेन ज़ी है हमारी पाकिस्तान की। मीन एक तो ये कि पहले हमने अपने मुल्क में सिनेमा का खुद गला घोट के मारा, या और फिर हम कहने लगे कि ओहो सिनेमा तो है ही नहीं। या पहले आपने खुद ही बाय डिज़ाइन जो भी मारा, है नहीं है ना अब। और जब अब नहीं है तो फिर या तो ये करते हैं कि हम सिनेमा बनाते ही ना, बहुत से दुनिया के मुल्क है जिनका सिनेमा है ही नहीं। सिंगापुर की कोई सिनेमैटिक लैंग्वेज नहीं है, नहीं है तो नहीं है, वो बहुत सक्सेसफुल हैं फाइनेंशियली, पर वो नहीं बनाते फिल्में। ईरान बहुत छोटा है पर एक बहुत थ्राइविंग इंडस्ट्री सिनेमा इंडस्ट्री है। आई डोंट नो उनका टेलीविज़न इंडस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी नहीं। टर्की की एक बहुत थ्राइविंग टेलीविज़न इंडस्ट्री है, शायद सिनेमा इंडस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कोरिया की एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिनेमैटिक इंडस्ट्री है और एक इतनी ही थ्राइविंग टेलीविज़न इंडस्ट्री भी है। दीज आर विजुअल मीडियम्स जहाँ पे आपको कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट करनी होती है टैलेंट की और पैसे की, टैलेंट की और पैसे की। हमारे यहाँ एक ही तरफ हुई, और अनफॉर्चुनेटली ड्रामे भी इसलिए कोई नहीं बने कि उनको खिदमत खल्क करनी थी जी। जितने भी ड्रामे अभी भी बना रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं जो इदारे या चैनल्स हैं, क्योंकि वो बहुत पैसा कमाते हैं जी। वो इसलिए बिल्कुल नहीं कर रहे क्योंकि उनको इस वक्त
लोगों से मोहब्बत है, नहीं। ना तो वो स्टार्स और ना ही वो ड्रामा बनाने वाले। वो आप बिल्कुल इसमें मत रहिएगा कि वो जो अदाकार हैं जो कह रहे हैं कि हम धूप में काम करते हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको आपसे मोहब्बत है, उनको उसकी वैनिटी वैन और पूरे पैसे मिल रहे होते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। इट्स अ इकोसिस्टम टू मेक मोर मनी। या आपके जितने चैनल हेड्स हैं उनमें से शायद ही कोई एक आधी क्रिएटिव डिसिप्लिन से आया हो, बाकी सारे बिजनेस ओनर्स हैं जो बैठे हुए हैं। नाउ कमिंग टू कि व्हाट कैन वी डू टू एलिवेट द स्टेटस ऑफ टेलीविजन परफॉर्मर्स टू बी अ स्टार। असल सवाल तो ये है। वो या तो हमें अपने स्टैंडर्ड लोअर करना पड़ेगा कि वो मवाजना छोड़ दें उनका। हम अपने मुल्क में अगर देखें तो वहीद मुराद, मोहम्मद अली शान, इमरान खान, इन लोगों से बिकॉज़ वो अनफेयर होगा। वो प्रेशर डालना जो हमारे टेलीविज़न के एक्टर्स या परफॉर्मर्स हैं। और वो नहीं फिर मिलेगा आपको। नहीं, और फिर जब कोई आके तनकीद करता है इस बात पे, जिस तरह बबरेक साहब ने अभी ये बात कही, तो हम सबको बुरा भी लगा सुनने वाले को, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक सच्चाई तो थी कि भाई ये फ़िल्मी शक्लें नहीं हैं, और ये हम सब जानते हैं फ़िल्मी शक्लें नहीं हैं ये। इसमें नहीं, से मगर उन्होंने क्योंकि 2-4 बड़ी गैर मुहज़्ज़ब बातें अटैच कर दी, आई थिंक वो जैसे तो किसी के उनका बारे में कहा कि वो मर्द नहीं लगते, वो तो फिर मुझे अपने लगता है आप को 10 ऑन 10 दे दिया कि मैं तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं, बॉलीवुड में नहीं, मैं तो हॉलीवुड मटीरियल हूँ। वो ऐसी बात उन्होंने किया कि कुछ क्रेडिबिलिटी अपनी फिर कैंसल आउट कर दी। अनफॉर्चुनेटली वो तो एक पाकिस्तानी जी। हमारा तरीका है। ये अगर वो ना कहते और सिर्फ ये कहते कि जो सिनेमा के फिर तो चेहरे वो एक हैं। समझदार इंसान हो जाते ना, तो फिर वो यहाँ पे कैसे होते? जी। हाँ। फिर वो उस शो पे नहीं होते ना, किसी और प्लेटफॉर्म पे बैठे होते। हुँ। वो इसीलिए ये एक मसला हमारे जी। यहाँ, वो तो खैर है तनकीद का बिला वजह की, पर एक ब्रॉडर कॉन्वर्जेशन तो हमने ये बहुत अरसे से है कि when we look at an iconic soap like Lux, who used to have the biggest movie star, फिल्मी सितारों की पसंद था ये तो लक्स, मुझे लगता है एवरी एपिसोड ऑफ कल्चर वल्चर इज नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉस बिकॉज ऑफ आपके स्टार। पास वो स्टार्स नहीं हैं। नहीं है। तो वो साबुन जो सिर्फ फिल्मी सितारों के साथ काम करता था, जो कहता था फिल्मी सितारों की पसंद, उसके पास ही सितारे मुसीबत से ढूंढ ढूंढ के, मतलब हम फोर्स कर रहे हैं कि उनको सितारा बना के बेच दें। जी। वो नहीं है। नहीं। किसी भी प्रोफेशन में नहीं है, मॉडलिंग में भी नहीं है, फैशन में भी नहीं है। कोई अभी आमना हक, वो भी लक्स नहीं, कर और चुकी मेरा थी। ये ख्याल है कि इसलिए नहीं है बिकॉज वो हर जगह हैं। हर जगह हैं वो लोग। वही बात है, देयर इन द पाम ऑफ योर हैंड। आप इंस्टाग्राम खोलें, आपको सब मिल जाएंगे, पता चल जाएगा आपको कि आज किसने क्या पर आप पहना ना, है, जो अभी लोग हैं क्या वो हरकत की मशहूर है। लोग तो हैं, वो मशहूर हैं, स्टार्स नहीं हैं। पॉपुलर हैं, बहुत वो बहुत पॉपुलर, आप देखें इंसेनली जब जन्नत पॉपुलर हैं। मिर्जा ने सईद नूर की फिल्म करी जी। और शायद कोई बहुत कम रुपयों का बिजनेस किया, और जी। उम्मीद तो ये थी कि वो इतना बड़ा टिकटॉक स्टार हैं, बहुत से लोग आएंगे, ऐसा उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। जी। लोग नहीं आए क्योंकि सिनेमा तक की जर्नी सिर्फ ये पैसों की जर्नी नहीं है कि मैं 1,000 रुपए दे के जा रहा हूँ। इट्स ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, या कि मेरा वक्त लगेगा, फिर मैं इससे कम्युनल एक्सपीरियंस भी होगा। बिल्कुल। वो एक स्टार तो पुल कर सकता है कि जी फलाना स्टार की लगी हुई है। आई एम सो हैप्पी दैट लव गुरु मेड अ लॉट ऑफ मनी, या बट जब हम उससे 2 साल पहले चले जाएँ, आई थिंक 3 साल पहले जब मौला जट लगी, तो उसमें इतने सारे स्टार्स थे। उमैमा इज़ अ स्टार, एब्सोल्युटली। फवाद इज़ अ स्टार, इसमें या आप कोई शफकत चीमा इज़ अ स्टार। अब आप उनको माने या नहीं माने, वो एक स्टार पावर तो है। और इनफैक्ट जब उस फिल्म की क्रिटिक भी की गई, तो सबसे ज़्यादा जिन लोगों की तारीफ हुई उसमें बाबर अली साहब एंड शफकत चीमा एंड देन ओपनिंग उमैमा। सीन बाबर अली एंड रेशम, व्हाट एन ओपनर। तो वो एक क्वालिटी तो है। आई नो कि बिल्कुल। दैट फिल्म मेड अ लॉट ऑफ नॉइज थ्रू फवाद एंड माहिरा, या बट द एक्चुअल स्टार्स वर द लिजिट वंस, जिनकी एक्टिंग की बुनियाद पर लोगों ने कहा इनको आके देखना है। टेलीविजन में आई डोंट थिंक सो वी विल हैव एनीबडी हु विल रोज टू दैट लेवल ऑफ स्टारडम, कि जिसको देख के आपकी सांसें रुक जाएं। क्योंकि मॉल में लोग जमा करना, तो वो तो आप पैसे दे के किसी के लिए भी ना, मूवी प्रीमियर से पहले लोग जमा कर लो, लोग आ जाएं, अवार्ड शो के बाहर खड़ा कर दो। इवन व्हेन दे लाइक यू नो वी ऑल गो टू दीज अवार्ड शोज, द रेड कार्पेट लुक सो लैक लस्टर वाली। या ऐसा कौन होता है जो देख के आपकी सांस रुकती है? बहुत कम है। यू नो जब कि आप आए और आप बोलें कि वाओ। और मुझे लगता है ये दिस लाइक यू सेड कि ये मसला सिर्फ यहाँ पे नहीं है, बहुत और सी फिल्मी इंडस्ट्रीज में है कि वी आर नॉट, द वर्ल्ड इज नॉट क्रिएटिंग अ टॉम क्रूज, Yeah, और द वर्ल्ड इज नॉट क्रिएटिंग I mean, एक तो और है what you're born with. I also think it needs to be nurtured as well. वो platform लाइक मिलने बहुत पोस्ट ज़रूरी शाहरुख है। खान हु हैज Nobody. rose to that level. I know कि लोग Ranveer Singh maybe. रणवीर, but I don't think so they
even Not have that level. half the No, no, attraction. not close, not या close. जिस तरह हमारे इमरान खान साहब को ही Hmm. आप अगर देख लें, वो जो लेवल ऑफ स्टारडम था क्रिकेटिंग स्टार्स का भी, वो अब नहीं है. अच्छा, मुझे लगता है कि इवन सिनेमा की दुनिया को ना बदलना पड़ेगा और रीथिंक करना पड़ेगा, इसलिए कि हर फिल्म भी अब सिनेमा में देखने को दिल नहीं करता। सिर्फ और पहले इन्वेस्टमेंट. या एग्जैक्टली पहले की जो फिल्में थी, आप क्योंकि सिनेमा जा रहे थे रोमांस देखने, गाने सुनने, वो जो चलता था ना, रोमांस, एडवेंचर, कॉमेडी, थ्रिल, रोम कॉम. रोम का सब कुछ चल रहा होता था एक फिल्म में, आप देखते थे और एक स्टार निकलता था वहाँ से। वो सब कुछ देखने अब आप सिनेमा नहीं जाएंगे। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो है मेरे ख्याल है अब विजुअली इट हैज़ टू बी पैनोरामिक। आई वुड गो टू द सिनेमा टू वॉच फॉर एग्जाम्पल अ मिशन इम्पॉसिबल और अ सुपर हीरो फिल्म. Although I loved A 12th Fail, I would not go to the cinema to watch A 12th Fail. लाइक ओटीटी की फिल्म है ये, तो ओटीटी OTT के की लिए. फिल्म है हाँ. नहीं, it's a really good film, a really No, really good beautifully film, made. beautiful film. I can watch it on my TV. It's okay. I can watch it on my TV. But for the cinematic experience, wo. But then on the other hand, there's a Game of Thrones that we watched on our laptops and our TV screens, Which but was that so was made for cinematic. cinematic. Yeah, yeah. Exactly. तो वो lines तो blur हो गई हैं. वो lines तो blur हो गई हैं. तो अब सितारे कहाँ से निकालें ये blurred lines में से? Investment has to be made. आप देखें कि just looking at the commerce of things, कि the biggest fashion brands have the biggest movie star. Yeah. Nicole Kidman for Balenciaga. Yeah. You know, so ये सबसे महंगा कोई movie star इस वक्त नहीं है. I think Hollywood में से Julie Roberts and her both have the biggest contracts with Bulgari, Lancome, and then Balenciaga. So Dior has just signed up with Miley Cyrus. Is it Dior? Margiela, Margiela. Maison of course. Margiela. Maison Margiela She's the has first signed- face First face of Margiela for a couture Yeah, house. yeah. So एक मूवी स्टार की पावर तो है, इस तो unhinged, unfazed वो रहेगी. वो तो demarcation हो गई थी ना when Anna Wintour put the first movie star on the cover of Vogue. And how And beautifully people were she- like, it's changed. The world has changed. And because movie stars got the status of fashion icons also. Yeah. Again investment की गई. हमारे यहाँ बहुत कोशिश कुछ अच्छे लोगों ने बहुत करी कि अच्छा जी इन लोगों को बचा के रखा जाए, ये सिनेमा की शक्लें हैं. जिस तरह शान ने खुद ही मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, टीवी पे नहीं आऊँगा. और बहुत vocal रहे हैं और शान इस बहुत चीज़ में वाइज डिसीजन कि उनका अगर मुझे है. सब मुफ्त देख रहे हैं टीवी पे, why would people pay to And watch me in the cinema? एक्सट्रीमली वाइज डिसीजन. Extremely. मुझे लगता है वो बहुत पैसे कमा सकते थे टेलीविजन पे आके. शायद जिन लोगों को नहीं पता, शान वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एड लीड. इश्तिहारों में जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स शान ने करे पेप्सी के साथ और मोबिलिंग के साथ, शायद ही किसी और स्टार ने उस लेवल तक पहुंचा हो. अभी भी when you look at him, you can tell it's a star. So greed is what ate the stars. बहुत चीज़ें करनी है, बहुत पैसा करना है, अपना भी यूट्यूब चैनल खोलना है, अपना भी कंटेंट करना है, अपनी क्लोथिंग लाइन भी करनी है, अपना भी मेला भी सजाना है, ये सब कुछ करना है, अपना शो भी करना है एक. बिकॉज they realize that the window is so short, we need to make maximum money. I am so delighted that Fawad disappears. Yeah. We don't know much about him. He has this enigma of completely detaching and hibernating. Yeah. I'm sure उनको बहुत यहाँ पर भी काम मिलने की बात हुई, इतना Actually, कुछ किया. फवाद ने पिछले 3 साल में बहुत काम किया है. हाँ. वो काम उनका रुका हुआ है, शेल्फ हुआ हुआ है. पर काम जो उन्होंने बहुत उन्होंने किया किया वो है. बहुत स्मार्टली किया कि अगर बरज़क किया तो वो किसी और प्लेटफॉर्म के लिए, सिंदूर शूट किया किसी और कि प्लेटफॉर्म के लिए, अबीर गुलाल किया तो किसी और उनके पास ये प्लेटफॉर्म के लिए. अपॉर्चुनिटी भी थी कि वो अक्रॉस अब आप साउथ ईस्ट उनको एशिया पाकिस्तान आइडल में देखेंगे एज अ जज. फिर फिल्म उनकी नीलोफर नीलोफर बनी उनकी हुई है, तैयार रखी हुई exactly. है. लेकिन वो गायब हो जाते हैं. Hmm. वो हर दफ़ा नहीं दिख रहे होते. आई थिंक सोशल मीडिया पे भी आई डोंट नो अगर हैं नहीं, या not नहीं not है. very very active at So all. बहुत अच्छी बात है कि ही इज़ नॉट देयर. दैट आई थिंक व्हेन वी से स्टार है तो वो एक इनिग्मा होना चाहिए ना, एक दिस सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री, मिस्टीक. Hmm. जब हम हिंदुस्तान में देखते हैं रेखा को बहुत साल बाद किसी कांजीवरम साड़ी में, अब काफी ज्यादा बेचारी, दिखते हैं. because वो अब I think काफी ज्यादा दिखते हैं people उनको. realize that on a red carpet she has a presence. Hmm. एकदम से पैब्स आते हैं, but when she did the cover of Vogue Arabia, Yeah. Dina iconic, Zaman has made such a beautiful iconic, comeback. legendary. Yeah, but talking about taking television stars to films or film stars to I think television, सबने ट्राई किया. सजल ट्राई. that is our conversation today. सजल ने हॉलीवुड के साथ भी ट्राई किया. Yeah. The movie that Jemima produced. Yeah. She was okay. Sajal is a lovely actress, yeah. but that's pretty much it. I don't think so. उनको लिया गया था expecting anything which was a star like.
that was a relatable Pakistani girl ka role. बिल्कुल. Misha Shafi acted also. She did Bhag Milka Bhag. She did Reluctant Fundamentalist. Reluctant, yeah. में वो बनी थी रेस की शबाना आजमी की बेटी. So they all have, most of these TV actresses, माहिरा ने किया, सनम सईद ने फिल्म करी केक. उसके बाद एक उनकी अपनी मोहिब के साथ भी फिल्म थी. Ishrat Baji. Ishrat Made in इशरत बाजी, China. हाँ. Ishrat Made in China. सो वो उन्होंने करी. सना जावेद ने फिल्म करी. इन सब ने फिल्में करी हुई हैं. दानिश तैमूर, सना जावेद, उमैमा, सजल, माहिरा, माया, all Zara Noor Abbas, they all have done a movie and great opportunity. Very forgettable though. But I mean, they got the opportunity. Somebody Yeah. invested money. Yeah. अगर अभी आई थिंक 27 करोड़ की बनी लव गुरु, तो वो इन्वेस्टमेंट तो करी ना. हमारे यहाँ बैंक्स नहीं हैं, कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आपको फंडिंग मिले. आई एम श्योर सेल्फ फाइनेंस या चैनल फाइनेंस्ड होगी मैक्सिमम. somebody put the money Yeah. on. So most of these actresses, they did try their luck. हमें आधे फिल्मों के नाम भी नहीं पता कि वो कब आई और कब उतर गई और कब गायब हो गई. आई थिंक बियॉन्ड माहिरा एंड माविश, I will say that I don't think so anybody else retained in the memory of people as the stars. Do you think Diane has done, coming full circle now, do you think Diane has done Mavish a favor, or has she reduced her star power, her star value by doing a Diane? I think only Mavish can answer that. I don't know why will she do a Diane. I don't know what circumstances, but my sort of inner gut feeling is that she didn't got opportunity to do anything in cinema. And for how long can you wait? You have to run a house. Yeah. But mean, Diane? What else? So post Mahavish's stardom as a cinematic performer, I don't think so people took her acting very seriously. So all the roles that she got were very checkered performance based roles. She's not like a Sabah Khamar who did English Winglish And Kamli. Kamli, और उसके बाद उनका जो टेलीविजन एक्सपीरियंस था, बिकॉज शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस. आई डोंट थिंक सो कि कोई भी सबा से वो चीज़ छीन सकता है. फिल्मी भी वो बहुत हैं इफ़ शी गेट द राइट परफॉर्मेंस आउट ऑफ एक वो इन्वेस्टमेंट की गई उस तरह की. बट वो सरमत जैसे लोग तो बहुत फिर कम हैं. बट फॉर लाइक अ माविश और whoever, then what will you do when you're out of work? Yeah. Like Humayun, there's a lot of, एक तो greed ना, या तो ये कि आप इतने कंटेंट रहे कि बस एक घर बन गया और 2 गाड़ियाँ आ गई, आई एम सॉर्टेड. Yeah. Then you want to have 15,000 other things and make as much money as possible till your last cinematic breath. Yeah. तो फिर तो वो कोई ना कोई चीज़ सफ़र करेगी. Grasping at straws. And the stardom will fade. और फिर उन लोगों को देखने लोग नहीं आएंगे. Like I feel like Hamza Ali Abbasi is very cinematic. I feel that. No, I agree with you. कि उसमें एक पुल है. To be honest, I feel like Sohai Ali Abro also was so filmy. I remember her dancing and she's a fantastic So good. dancer. Diwani Pirni Ani one. And she was so alive. Like you can't take that away. In all honesty, I feel like Zara Noor Abbas. I think Sonia Hussain is so made for big screen. But वही बात है, these people are not being And Sonia nurtured did as... more. जामी वाली फिल्म में वो थी, she was really really good in more. बहुत even like जो supporting roles वाले लोग भी हमारे हैं वो बहुत अच्छे हैं. Bring Resham back in a great role. जिस तरह अभी साइमा का हम impact देख रहे हैं ना, वो एक ड्रामे की क्लिप्स एक तरफ चलते हैं और साइमा के क्लिप्स एक तरफ चलते हैं. उनका सिर्फ आंखें उठा के देखना, आगे पीछे से कोई जुमला बोलना, और फिर चल परे हट, यू नो, लाइक उनका एक अपना कोई जुमला कहने का एक तरीका है. ऑफ कोर्स जिस तरह से उनको स्टाइल किया गया है नदीम ने. सो kudos to the director who saw her that way. And in all honesty, I think she only did this for नदीम, क्योंकि वो बहुत रेवरेंस है सैयद नूर साहब का नदीम की तरफ, तो शायद वो इसलिए मानी हो. वरना वो बिल्कुल, वो तो एक नहायत ही डिटैच इंसान, वो खेती बाड़ी कर रही होती हैं in her leisure time. Saima doesn't do anything. शायद वो शहर में रहती भी नहीं Just है. imagine sleeper hit. वो सिर्फ खेती बाड़ी करती हैं, वो मक्खन और बनाती हैं, which is how I think she is like living a different life. And enjoying and embracing now this popularity. But for television, I think it's not just responsibility of television. We need to have journalists. We need to have consultants, beauty consultants. We need to have brands to shape that star. It's a whole ecosystem that needs to be thought out that way.
with that फिर से कोई intention. सज्जाद गुल आए, Yeah, with किसी that जी अली को intention. ढूंढ के लाएं, किसी Hmm. नबीला के हाथ में सौंपें, Hmm. कोई टप्पू जवेरी उनकी तस्वीर लें, कोई आमना ईसानी उनके बारे में या फीफी हारून उनके बारे में 4 सफ़े लिखें, वो तो इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही. Hmm. बिकॉज और मुझे लगता है एक, शायद आपको ये बात गलत लगे, लेकिन स्टार्स और जो बनने वाले हैं, होपफुल्स हैं, उनका अपना भी कोई रेफरेंस नहीं है ज़्यादा जर्नलिस्ट की तरफ या फलाने की तरफ. कोई वो नहीं, है ही सिग्निफिकेंस नहीं है उनकी कि नहीं. ये तो हम खुद ही कर लेंगे ना, हम अपने शूट अपने इंस्टाग्राम पे खुद ही लिख देंगे अपनी तारीफों में. Yeah. तो हम क्यों, दे फॉरगेट दैट द इम्पैक्ट ऑफ जर्नलिस्ट, लाइक 20 साल पहले आप चले जाएं, when you look at a Filmfare magazine or a Yeah, Stardust or a yeah, Cine Blitz, they yeah. were making a star. That one headline. Do you think that time has gone? In Pakistan तो for sure. Hmm. रिस्पेक्ट तो वैसे किसी भी चीज़ की नहीं है, जर्नलिस्ट की तो बिल्कुल ही यहाँ पे. I mean, जब उन्होंने, आपके स्टार्स बैठ के टेलीविजन पे ये बोल रहे हैं कि जी हमसे इनकी दुकानें चल रही हैं, तो चलाते रहें. पर आपको ठीक है, पता भी लग क्या जाता है ना उससे कि वो आपको कहाँ कहाँ आपको पोजीशन कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. सो उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि वो हाँ. इकोसिस्टम का हिस्सा अभी भी समझ नहीं रहा है. देयर इज अ लॉट ऑफ एंटाइटलमेंट. नहीं, इकोसिस्टम तो वो समझ ही नहीं ना रहे. मैं तो उस दिन कहा भी था हॉट बाइट्स में हसन को कि वो समझते हैं जैसे कि हम क्रिटिक्स जो हैं या जर्नलिस्ट जो हैं वो स्कैवेंजर्स हैं या हम पैरासाइट्स हैं कि वी आर फीडिंग ऑफ देम. They don't realize that वो it's a खाम ख्याली symbiotic है. relationship. It's an ecosystem in which everybody has to exist साथ एंड साथ. मुझे ये सिर्फ एक वाहिद आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट फील्ड है पाकिस्तान में जहाँ पे इतना डिसरिगार्ड है. व्हेन यू लुक एट फाइन आर्ट, Yeah. so which I'm very passionate and closely work as an art buyer investor, that जो जब भी कोई आर्ट क्रिटिक लिखता है आर्टिस्ट के बारे में, तो वो एक सेक्रोसेंट चीज़ बन जाती है कि ये सच्चाई है उस आर्टिस्ट की. व्हेन कुद्दूस मिर्जा राइट्स अबाउट आर्टिस्ट, Mm. that decides the fate of that artist. Yeah. He's an artist and a journalist. So वो इतनी, जब आप देखते हैं ग्रेट थिएटर, और जब लोग लिखते हैं वेस्ट में, इंग्लैंड में अबाउट थिएटर, वो करियर्स वहाँ से बनते हैं उन लोगों के, क्योंकि उनको रिगार्ड होता है, यार देखो उसने क्या लिखा. मगर अब दोनों तरफ चल रहा है ना. वहाँ भी थोड़ी सी अब मिलावट तो हो गई है बिकॉज पेड कंटेंट इतना आ गया But है. then we still have yeah. an Anupama, or we still have the great Bharadwaj Rangan, कि जब वो लिखते हैं फिल्म्स के बारे में या स्टार्स के Few बारे and में. far between. बट अगेन मुझे लगता है वो क्योंकि उनके पास यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, तो शायद हम उनको ज़्यादा इसलिए जानते हैं. शायद. वरना जो और आई भी एम श्योर होंगे. लिख रहे होंगे इंडिया Yeah. टुडे के अंदर और बॉम्बे टाइम्स Yeah, में या yeah, हिंदुस्तान yeah. टाइम्स में, हमें उसका पता नहीं होगा. लेकिन हमारे यहाँ तो जो हैं उनकी इज्जत नहीं मिल रही. Hmm. But I always feel कि when you write something, because I do remember when you write something about fashion or Yeah. Fifi writes something about music, I mean, we can't disregard के vital signs को बनाने में Hmm. फीफी हारून के आर्टिकल का कितना बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है. Hmm. 4 गुड लुकिंग लड़के इस्लामाबाद से आए, गाने बजाए, चले गए. लोगों को नहीं पता ना, और- लेकिन ये बात है. पर अगर फीफी नहीं डॉक्यूमेंट करती, बिल्कुल आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं तो पहुंचते. बिल्कुल. But the way she documented their journey, so you can't disregard the value of a journalist, or you can't disregard when an Amna Isani is writing about a fashion week and Kamya Rokni ka kaam. Oof, beautiful. You can't disregard. Or interviewing of Uh, Fawad after he's won his yes, Filmfare Award so- in Bombay. ये you can't. और ये नहीं है कि हमें लगता है कि जी क्या हम, मैंने ये भी बहुत देखा है मज़े के कि दिन थे हमें वो. पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू नहीं देना. Hmm. ये भी कोई एक बीमारी फैली हुई है कि आई विल बी लेसर इफ़ आई एम टॉकिंग टू माई ओन काइंड. तो मैं हिंदुस्तान के लोगों को या कहीं के भी जर्नलिस्ट होंगे उनको दे दूंगा टेढ़ी सेढ़ी अंग्रेजी उर्दू बोल के, पर मैं यहाँ के लोगों को, भाई इवेंचुअली तो यही मेरे है. ख्याल है पैसा, जहाँ पे पैसा मिले. एनीवे ये इस बट conversation अगर की तरफ स्टार हम नहीं जा बनाना रहे. है, हाँ. सो यू नीड टू क्रिएट एन You इकोसिस्टम, need to respect the Uh, ecosystem and you need एंड to be उस part of टैलेंट it. को भी, Yeah. क्योंकि अब हम सबको शायद जो एक ख़ास उम्र की विविडली याद होगा कि जब पहले लोग आते थे वो कहते थे मैं आपको सौंप रहा हूँ Hmm. अपना आप, अब आप बताएं कि कैसे चलना क्या है, करना है. क्या करना है. Yeah. अगर आप अतर शहजाद से पूछें कि किस तरीके से उन्होंने दे क्रिएट खावर अ को कन्वेयर, पूछें. या खावर रियाज को Yeah. पूछें या नबीला को पूछें, चाहे वो अयान अली आई या जिया अली या आई, तारिक अमीन को पूछें. तो ये आपको बताएंगे कि वो डंडे मार मार के Yeah. जो सिखाया गया है ना, ये बहुत मेहनतों वाला काम है. एंड देन दे बिकेम लाइक, इफ यू टॉक टू रीमा एंड शी विल टेल यू हाउ डिफिकल्ट हर जर्नी वाज. Yeah. ये कोई आसान नहीं था. तो वो एक पूरी इकोसिस्टम, एक कन्वेयर बेल्ट शुरू की जिसमें हर किसी ने अपना पार्ट किया. Hmm.
उस इंसान को कुछ बनाने में. When Freha took Shan for a makeover for the modeling कि जी ये कूल बनाना है इसको, और वो शान के स्पाइक्स वाले बाल थे, हेड टू टू अरमानी पहनाया गया, मेंस स्टोर नया नया खुला था, ऑल दोज थिंग्स. Yeah. तो ये एक डिसीजंस हैं जो इफ वी वांट these people to be part of our culture, which they will always be. Yeah. I think कोई भी culture नहीं हो सकता without the entertainers. यावर ने बहुत से अच्छे वक्त याद करा दिए, बहुत से ज़बरदस्त शूट, अच्छी फिल्में, अच्छे सितारे, अच्छे वक्त, Unmatched performances and अनमैच people. परफॉर्मेंसेस. मगर आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोगों का क्या ख्याल है कि जो फिल्म स्टार है उसका कंपैरिजन किया जा सकता है टीवी स्टार से? आपका ख्याल है कि जो टेलीविज़न के स्टार्स हैं हमारे मुल्क में, दे आर बिगर देन फिल्म स्टार्स, और डू यू रियलाइज दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ? I'd love to hear I think जो what people जो feel. जो इस प्रोग्राम के लोग देख रहे होते हैं, मुझे लगता है वो ख़ास एज के हैं और वो उनकी बहुत बुरी किस्मत रही होगी क्योंकि वो सिनेमा से वाकिफ़ ही नहीं है. Yeah. जो हमारा सिनेमा है वो एक अब चाहे उसको कि एक सिनेमा गंदा था, बुरा था, बेहुदा था, वो दुनिया में हर तरह का सिनेमा बनता है, पर सिनेमा का ना होना एक तकलीफ दे बात है. बिल्कुल. So I wish you guys had the luxury and the comfort of watching a movie with a popcorn. है ना? Going to a Capri Cinema or a Prince or a Nishat, all these wonderful cinemas. और अब अगर who do you guys refer to as a star? I know they all will be like Adra Zamir and Ikra and Shariat Munawwar. Yes, they all are in their own capacity. कैपेसिटी छोटी हो गई है. पर क्या भाग के लाइनों में रुक के उनका ऑटोग्राफ आप यही बात लेंगे है. कि नहीं? आप टिकट खरीद के जाएंगे इनकी फिल्म देखने के नहीं. और फिर अब एकदम से जजमेंट आई थिंक वो हमें नहीं करनी चाहिए. यू कांट जज कि अब उन्होंने क्या पहना और क्या नहीं पहना और उस बुनियाद पर उनको कैंसिल कर दिया जाए या उनको मार दिया जाए. नहीं वो और चीज़ है, लेकिन क्या बॉटम लाइन ये है कि क्या आप पैसे दे के टिकट खरीद के उनकी फिल्म देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे? इससे पता चलता है कि आप कितना पावर क्या है, बिकॉज पावर क्या है. नो कल्चर can thrive and survive without its cinematic language. Historically सदियों से ऐसा कोई कल्चर नहीं रहा जिनकी कोई परफॉर्मिंग एक्सप्रेशन ना रही हो. चाहे वो नाटक था, चाहे वो डांस था, चाहे वो सिनेमा था, ये सारे वही कल्मिनेट किए गए. सो आई डोंट थिंक सो दिस कंट्री विल गो अहेड एज अ ग्रेट कंट्री विदाउट इट्स सिनेमैटिक लैंग्वेज. सो आज के टाइटल क्या होगा आज के एपिसोड का? The Missing Star. The Missing Star. Which is genuinely true. We don't have... we're looking for the missing stars. Absolutely. Should we bring them back? कोई ढूंढ के निकाले. कोई ढूंढ के निकाले. चलें जी. Thank you. Yeah, a great conversation as always. Would love to hear from our audience. Write to us. We read every comment. How do they feel? Who do you feel is Pakistan's biggest star right now? छोड़ दें टेलीविजन हो गया, फिल्म हो गया, म्यूजिक हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, whatever, sportsmen. Who are Pakistan's biggest stars right now? Do we have them? Are we looking? We're looking. Missing in action. And also, what should we talk about next? If you guys have a suggestion. Yeah, please drop suggestions as well. Culture is great when it has a lot of people coming in. Yeah, absolutely. With their point of views, and we will love to talk about it. It's a conversation. We have opened the table for more comments and more conversations. Amna, thank you so much. Thank you, for having me over. With Thank a new you. haircut and a new you. Thank you. Thank you. Winter is around the corner and now the hair will behave. Garmiyon mein to it just was not behaving. It was like, bus. It was like dragging me down. It's a new day. New day, new season, new hair. Absolutely. Thank you. Thank you, Yavar. Thank you, guys. Thank you for tuning in. See you next week.